be invited for this talk. You already have it. I saw the schedule. Mantras to focus on indigenous perspectives on energy, climate and sustainability in Sanskrit and Maithili knowledge systems. मंत्रों से लेकर लोक कथाओं तक संस्कृत और मैथिली ज्ञान प्राणियों में ऊर्जा, जलवायु, वायुवीयता पर स्वदेशी दृष्टिकोण। ये समझने के लिए आपको पहले ऋग्वेद में जाना पड़ेगा, क्योंकि how this universe came into existence is necessary to understand how to protect the earth and the environment. So you must first know how the universe cosmos formed. That is taught by the academic people as Big Bang theory and all those things. But what is more important is Rig Veda, Mandala 10, Sloka 129 has told how the universe was formed. That's very interesting. Let me quote a few lines. It came in the Bharat Ke Kuch serial also as the title song. सृष्टि के पहले सच नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, छिपा क्या था, कहाँ, किसने ढाका था, उस पल तो अगम अतल जल भी न कहाँ था, सृष्टि का कौन है करता, सृष्टि का कौन है करता, ये नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता. So it clearly tells the universe started from nothing. Whether God existed before the universe or the universe came after the God, nobody has been able to answer. So Rig Veda has told clearly how the universe came into existence. I will not go into Samved because B.C. Ma'am in the inaugural address has quoted a quote from Samved, so I will not repeat it. I will go to Atharva Veda, which says that in chapter 12, 1.12, Mata Bhumi Putroham Prithivya. Mother, Earth is our mother, we are all their children, and it is the duty of the children to protect the mother. Right? So, mantras have come into existence. We will soon go into. So, I have covered Rig Veda and Atharva Veda. Yajurveda. Yajurveda has got something special. I think when they introduced me, they told I am this professor, chemical, head HOD and all those things. लेकिन वो मेरा असली पहचान नहीं है. मेरा असली पहचान है अभिवादये आत्रेय आत्मांत त्रयार्षेय प्रभरान वित्तक आत्रेय गोत्रक आवर्तम सूत्रक यजुष्यागा नटराज सम्मान. I am a Yajurvedi. Right, I am a Yajurvedi. So I have every reason to connect Yajurvedi to today's talk. Before that, 2 years back, 2023, I took a journey of all over India, 8,000 kilometers in train in 8 days. That was my project, and I did it. And I went through a whole stretch of Bihar. Right, I went through a whole stretch of Bihar, which covered, many districts. I think after Patna, I passed through Begusarai, Kagaria, and all those things towards God. When traveling in that stretch, I got a special feel of energy. I did not know why. Today, when preparing for this talk, I realized that Maithili has a lot of connection with Yajurveda. Right? Maithili has a lot of connection with Yajurveda. What are all those things? Now, you know Veda, Upanishad, right? So, Upanishad, Veda tells the karma part of the thing, and Upanishad tells you the knowledge part. Very interesting, and Upanishads are like the essence of the Vedas. And always there has been a question of, even today we have this question, मैं कौन हूँ?
It is there going on from time immemorial, which says that Atman and Brahman, Paramatma, Jivatma, Purush, Prakriti, in sabka rishta kya hai? Who is connected to what and how? Right? So, how do you answer these questions? You see, when you have a doubt in maths, you go to a maths professor. When you have a doubt in chemistry, you go to a chemistry professor. But when you have a doubt for which there is no subject expert, like what is depth? Like cone what syllabus it is? So you go to a philosopher. Right? Philosophers can answer any question. Actually, they don't answer. They keep on asking you questions until you yourself find the answer. That is the beauty of philosophy. Many people think philosophy is all Babagiri and all those things. It is not. Philosophy teaches you logic to decide what is right, wrong, ethics, what is good, bad, right. So, what is real and unreal, metaphysics, what is true, what is false. These are all the subjects or subsects of the philosophy subject. So, philosophy is not about Babagiri. It deals with ethics, logic, metaphysics, and epistemology. Right? So, philosophy. So, many schools of philosophy came in India to discuss all these questions. Jivatma, Paramatma, all these things. So, several schools, namely Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa, Nyaya, Vaiseshika, Sankhya, all these schools of philosophy happened in the Mithila or Maithili region of Bharatavarshe, Bharatakanshe. Right? Bharatavarshe, Bharatakanshe and many regions, Maithili region is where all these schools of philosophy were developed. Also, what is the Maithili region? You have seen it you already heard of the Maithili region in Ramayana and Mahabharata. But today, geographically, Maithili region is the one with Himalayas on the north and Kandak river on the west, Koshi river on the east and Ganga on the south. So the portion of land in this boundary is what is called as the Mithila, Maithili. Now, I already told you that you have heard about this in Ramayana and Mahabharata. We'll just come to it slowly. Before that, there was a lot of talk of energy, sustainability and urja and all those things. The lecture itself started with nuclear energy, how it is beneficial. Somebody talked about coal, crude oil, petrol, this, that and all. But let me tell you, the ultimate source of energy is the sun. Without the sun, there is no other energy. It is not solar energy. Remember that first, how the universe formed, some greenery came into existence. That came by photosynthesis. For photosynthesis, sunlight is required. Right? Only then the trees and all fell down and got rotten and became gold, crude oil and all those things. Right? It became minerals and whatnot. So, solar sun is the ultimate form of energy, and in Sanskrit we have a whole lot of Surya Namaskar and all those things to pray to the sun god. Let me tell a few lines. Om Mitraya Namaha, Om Rave Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Manave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Krishnave Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Mahite Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitraya Namaha, Om Maragaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. So, we knew from the Vedic times what is the ultimate source of energy. And today we are talking nuclear and all those things. And remember, in Ramayana, when Ram fought the final battle with Ravan, you know how he did it. He was very tired after the war, and Agastya Rishi came and gave the Aditya Hridaya Sutra to him, which empowered Bhagavan Ram to do the ultimate battle and kill Ravan. Right? Adhyastri Aditya Hridaya Sutra Mahamantrasya Agastya Bhagavan Rishiki Anushtup Chandaga Sri Surya Narayano Devata, that is how the Aditya Hridaya Sutra. Sarva Shakti Vinasam.
So the sun is the ultimate energy, and we are going on talking nuclear fusion, fission, uranium, thorium, and all those things. Right. Come next. So we already told that it is in Ramayana, Ravan battle, Surya has come into picture. But more important is the Mithila region is, Ram is from Ayodhya and Sita is from the Mithila region. And can somebody tell what is the father's name of Mata Sita? Janna. But he was born on land. Everybody is telling Janak, Payal, Turi, Bade. Right. You get up. Yeah, come here. Actually, his father is Lord Vishnu. Question is for students, not for professors. Take the mic, take the mic. Take the mic. Okay, so everybody tells Janak, Tori, Bhaje, Bhajaniya. Nahi, it is, tell, what is the name? सभी को मेरा नमस्कार. सीता's father's full name is Siradhwaj Janak. Like Bharadwaj, Siradhwaj Janak. लगता है आप मधुबनी है तो शाम बाद तो लग रहा है मुझे. So ये खुद सीता का इलाका का है मधुबनी. Right? Are you from Madhubani? Wow. That's very interesting. The coincidence. Give her a big hand. Okay. So I think आप और हम मिले सुर मेरा तुम्हारा. मैं कैसे बोलते हैं? मिले ये सुर हमर आहा के जते नहीं अपना Very good. So we will do a jugalbandi now. It's I understand that the Maithili region has some very good agricultural practices like crop rotation. They don't grow the same crop again and again. एक फसल काटो दोबारा डालो ऐसे नहीं है. Crop बदलते रहते हैं. मानो wheat, then maybe some dal, and then maybe some other vegetable or something. So that do you still follow it in Maithili region? Yes sir, we still follow it. बिल्कुल सही कहा सर ने. हमारे बिहार में जो आम जनता है वो ज्यादातर कृषि कार्य पर आधारित थी. उनका मुख्य ऑक्यूपेशन कृषि कार्य ही था. तो मेरे गांव में खुद अभी भी खेती होती है. पहले विस्तृत स्तर पे होती थी, अब थोड़ा कम है पर होती है. तो मैंने जो देखा है अपने गांव में मैं उसी की चर्चा आप लोग के साथ कर रही हूँ. मेरे गांव में मतलब हमको पता है कि क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. तो रबी क्रॉप्स में जैसे गेहूं और दलहन इत्यादि मेरे गांव में उगाए जाते हैं और खरीफ क्रॉप्स में धान उगाए जाते हैं. तो धान को पानी की आवश्यकता, अधिक पानी की आवश्यकता होती है. तो इसे मॉनसून के टाइम में यानी आषाढ़ और सावन के महीने के आसपास इसकी बोई, धानों के बीजों को बोया जाता है. इसे हमारे यहाँ धान के बीजों को बिचरा कहते हैं मैथिली में. तो इन बीज को पहले खेतों, हमारे यहाँ जुताई जो होती है वो अभी भी, वैसे ट्रैक्टर्स का यूज होता है पर अभी भी हमारे यहाँ के लोग ट्रेडिशनल वे को ही प्रेफर करते हैं, यानी हल और बैल की मदद से जुताई. तो धान के बीजों को बोया जाता है, उसके बाद उसकी देखभाल की जाती है और जो भी घास वगैरह होते हैं उसे हटाने के लिए मैन पावर का यूज किया जाता है. कोई भी दवाइयाँ वगैरह नहीं डाली जाती है. धान की अच्छी सी देखभाल होती है. फिर नवंबर दिसंबर के टाइम में फसल तैयार हो जाती है. फिर इसको काट के हटाया जाता है. फिर उसको ले जाके हम जानते हैं एक प्रोसेस होती है थ्रेशिंग, जिसमें धान में से चावल के बीजों को निकाला जाता है. तो उस प्रोसेस के लिए हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल वे है जो मैंने देखा अपने गाँव में, उसको बोलते हैं दौनी, उस वर्ड को मैथिली में. तो दौनी का जो प्रोसेस है उसमें एक खंभा मिट्टी में गाड़ा जाता है और उस पे रस्सी के माध्यम से बैल को उसके साथ बांध के और वहां पे चारों तरफ धान को बिछा के उस पे से उसको चलाया जाता है. उससे क्या होता है कि धान के छिलके और चावल के दाने अलग हो जाते हैं. फिर उन चावल के दानों को स्टोर कर लिया जाता है. अब फिर इसके बाद हम लोग गेहूं की खेती करते हैं. जनवरी फरवरी के टाइम में गेहूं की फसल तैयार हुई. इसमें हम खाद के लिए हम कोई भी दवाइयाँ यूज नहीं करते, कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं यूज करते. हम मवेशी
भी एक प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस पे बेस्ड है पूरा। इसके बाद गेहूं की फसल हुई, तो अब हमने एक साल में पहले धान की खेती की, उसके बाद गेहूं की खेती की। अब अगले साल हम फिर धान करते हैं, उसके बाद दलहन करते हैं। हम गेहूं को दोबारा नहीं बोते, जिससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है और हमारी सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। दलहन में जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल इत्यादि, अरहर की दाल सब उगाए जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इरिगेशन के लिए मोस्टली तो हम बारिश पे बेस्ड होते हैं। उसके अलावा बोरवेल्स के थ्रू पानी ग्राउंड वाटर का पानी लेके यूज किया जाता है। और हमारे यहाँ एक आहर पाइन प्रणाली होती है, जिसमें बारिश हमारे, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे राज्य में गंगा, कोसी, गंडक इत्यादि सभी नदियां हैं, तो बारिश के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे रिवर लेवल ऊपर हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। तो उस समय बाढ़ के नियंत्रण के लिए उसके जो पानी है उसको एक जगह स्टोर किया जाता है, गड्ढा खोद के, उसको बोलते हैं आहर। तो आहर में पानी स्टोर किया जाता है, वो एक जलाशय का फॉर्म ले लेता है, जिसको कि हम कहते हैं मैथिली में पोखर। तो जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो पाइन यानी नहर और चैनल्स के थ्रू हम उसे वहां से ले जाके खेत तक पहुंचाते हैं। तो इससे दो चीजें होती है, एक तो रेन वाटर का कंजर्वेशन हो रहा है, दूसरी हमारे जो बाढ़ की समस्या है उसमें नियंत्रण हो रहा है, फ्लड मैनेजमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम तो इससे साबित होता है कि मैथिली इलाका में सस्टेनेबल फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आज भी चलते हैं, राइट? मेरा नाम असिता है, मैं बीए बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। So, वो अभी क्या आसिता, आज मेरे लिए ये आसिता मैथिली, आसिता मधुबनी। Okay, so very good Asita, and I also understand that the Maithili region is very famous for the Madhubani painting, right? Which is something unique. I think the dupatta you are wearing. आप देख सकते हैं Madhubani. मधुबनी Show the painting है। design. Show the design. And what is special about it? So that is the Madhubani painting dupatta, and today you have Madhubani painted shawl, what is that, sarees, and even shirts. I am sure if they give me some honorarium for this seminar, I will buy a Madhubani shirt. Okay, so what is special about Madhubani painting? Okay, तो मधुबनी क्या पेंटिंग ये BBC में रंग खरीद के छापते हैं? How do you do that? Tell me. बिल्कुल नहीं। मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग, जैसे कि आपको नाम से पता चला कि मिथिला रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें इसकी जो चित्रकला है वो ज्यादातर पौराणिक कथाओं जैसे रामायण, कृष्ण की जन्म, इन सब पे आधारित है। और इसमें प्राकृतिक संपादनों का, प्राकृतिक चीजों का और ग्रामीण लाइफ का इतना अच्छा इसमें पोर्ट्रेट किया जाता है पेंटिंग के थ्रू, बहुत शानदार होता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसकी खास बात होती है कि इसमें जो पेंटिंग की जो शैली है, इसमें पतले पतले महीन डिजाइन, महीन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिजाइन बहुत जटिल दिखता है और बहुत कॉम्पैक्ट दिखता है और दूर से बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि जो ट्रेडिशनली मिथिला पेंटिंग की जाती थी उसमें सारे के सारे नेचुरल कलर्स यूज होते थे। जितने भी आज हम सिंथेटिक कलर्स देखते हैं वो बिल्कुल नहीं यूज होते थे। तो हम आज भी उसको बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर है तो हम उसको चावल के आटे के पेस्ट से व्हाइट कलर बना सकते हैं, ब्लैक कलर को हम काजल से बना सकते हैं, येलो कलर हल्दी से बन सकता है, लाल कलर वो सरसों को पीसकर उसमें सिंदूर मिलाकर बनाया जाता है, नीला कलर अपराजिता के फूलों से बनता है और ऑरेंज कलर जैसे कि मैंने बताया कि पलाश के फूलों से या फिर हल्दी से भी बन सकता है। तो ये इसकी खासियत है। और जहाँ तक रही बात ब्रश की, तो ब्रश के लिए अभी भी लकड़ी के पतले पतले छड़े बोलते हैं हमारे यहाँ से, उसको यूज किया जाता है और बैम्बू के छड़े यूज की जाती है इसमें। और पेंटिंग के लिए कपास यानी कॉटन और उंगलियों का भी यूज किया जाता है। और आज के टाइम पे मिथिला पेंटिंग करोड़ों महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेंटिंग जो है वो फीमेल प्रधान है, महिला प्रधान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे खुद के लीनियज में मेरे पूर्वज रहे लक्ष्मीनाथ झा, स्वर्गीय लक्ष्मीनाथ झा, वो बहुत अच्छी मिथिला पेंटिंग बनाते थे और मधुबनी में बहुत फेमस है वो। और जगदीश चंद्र झा फादर ऑफ मिथिला पेंटिंग माने जाते हैं, कहे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स ही बनाती है, मेल्स भी इसको इक्वली अपना योगदान देते हैं इसमें।
और यही सब रीजन है जिसके कारण आज ये ना केवल बिहार में, ना केवल भारत में, ये पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। Okay, so actually painting, I mean, it totally uses natural material and no chemical and no pollution, right? And that's the practice till date, and it will continue also. And Madhubani painting sell at a premium today in the art market today. And we all celebrate New Year, Vaishakhi, Tamil New Year all on April 14th. What do you celebrate in Maithili April 14th? एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि हिंदू विक्रम संवत्सर के अनुसार जो हिंदू का नव वर्ष है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो कि चंद्रमा के अनुसार हमारा नव वर्ष माना जाता है। सौर गणना के अनुसार जब हमारी जो पहली राशि है मेष राशि, उसमें जब सूर्य प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं मेष संक्रांति, और इसी समय हमारे यहाँ मिथिलांचल में नव वर्ष मनाया जाता है और इसे हम जूड़ी शीतल के नाम से मनाते हैं। जूड़ी शीतल जी हाँ। जूड़ी शीतल बहुत ही प्रोमिनेंट फेस्टिवल है हमारे यहाँ का। हर घर हर बच्चा सेलिब्रेट करता है हमारे यहाँ पे जूड़ी शीतल। ये जूड़ी शीतल का मतलब है कि शीतलता प्राप्त करना। तो ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है। इसमें सबसे पहले दिन जो होता है उसको सतवाई बोलते हैं और उसमें सत्तू को खाया जाता है। उसके अगले दिन जो है वो बेसन की डिशेस बनाते हैं, उसको खाते हैं और इस प्रकार हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। केवल जूड़ी शीतल ही हमारे यहाँ छठ सेलिब्रेट की जाती है जिसमें सूर्य की उपासना होती है। चौथ चंद्र होता है जिसमें चंद्रमा की उपासना होती है। तो इन सब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे प्रकृति पूजन को देवताओं से जुड़कर हम बहुत ही लोगों के बीच में और जूड़ी शीतल पूरा मैथिली इलाका में किचन बंद, कोई खाना नहीं है ना। हाँ, ये मतलब रीजन्स में डिफर करता है। जैसे हमारे रीजन में कुछ चीजें होती हैं, अलग रीजन्स में क्या होता है हमारे कुछ दूरी पर ही कि जैसे पहले कुआं होता था, तालाब होते थे, उसके पानी को निकाल के उसके कीचड़ वगैरह को साफ करके उसमें बरसात का नया क्लीन पानी जमा हो, इसके लिए उसको साफ किया जाता था। और उस समय धुल खेली होती है, यानी हम लोग धूल से, मिट्टी से, कीचड़ से होली खेला करते हैं। बहुत ही उसमें हम लोग सत्तू खाते हैं, बॉड़ी खाते हैं, दही पूरी खाते हैं, यानी पूरी में दाल की स्टफिंग में बहुत मजा आता है उस टाइम। अगले बार लेके आना। बिल्कुल। Also पुराने कुएं, तालाब, इन सब से पुराने पानी हटा के, मिट्टी हटा के कुछ करते हैं ना, वो क्या है बताओ? हाँ, उससे कीचड़ की होली खेली जाती है। उससे कीचड़ की होली किसे खेला जाता है? अच्छा, so that it is a desilting operation, so that the old sand is removed and new soil is there to absorb more water and refill the groundwater, etc. So that's very interesting, and I understand that Vidyapati was a great poet of the Maithili, and can you tell something about, there is a great folk tale about Vidyapati, can you share it with us? शायद टाइम थोड़ा कम है पर मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो विद्यापति जी जिन्हें कवि कोकिल के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है, ना केवल बिहार में समस्त भारतवर्ष में जाने जाते हैं। इन्होंने कई गीत, कई कविताएं मैथिली भाषा में लिखी हैं। ये शिव जी के अनंत भक्त थे और इनकी एक कथा है जो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। हर दादी नानी अपने बच्चों को सिखाती है, हमारे यहाँ सुनाती है। तो विद्यापति जी के यहाँ एक बार शंकर जी एक नौकर के वेश में आए थे, उगना के नाम से, उनका नाम उगना था। तो वो उगना के वेश में विद्यापति जी के यहाँ आए थे। वो वहाँ पे उनके यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे। तो एक दिन विद्यापति और उगना जी कहीं जा रहे थे। विद्यापति को बहुत प्यास लगी और वहाँ पे कोई जल का स्रोत था नहीं, कुआं, जलाशय कुछ था नहीं। तो उगना ने, चूंकि वो स्वयं महादेव के अवतार थे, तो अपनी जटाओं से गंगा जी को अवतरित करके उन्हें पीने के लिए दिया। तो विद्यापति जी ने जब उसको ग्रहण किया तो उन्हें, वो इतने अनन्य भक्त थे शिव जी के कि उन्हें वो ग्रहण करते ही पता चल गया टेस्ट से कि ये तो गंगा जल है और वो समझ गए कि ये कोई साधारण तो व्यक्ति है नहीं। तो उस समय उनको उनकी सच्चाई के बारे में पता चली कि ये महादेव के अवतार है। फिर उसके बाद शिव जी ने उन्हें कहा कि ये सच्चाई जो है इसे आप किसी को नहीं बताएंगे, यदि आपने किसी को बता दिया तो उसी समय मैं अंतर्धान हो जाऊंगा।
एक दिन क्या हुआ कि विद्यापति की जो पत्नी थी उन्होंने उगना को काम दिया था कोई काम करने, उस काम को वो ढंग से शायद कर नहीं पाई या फिर भूल गए करना, तो उनको बहुत गुस्सा आया विद्यापति जी की पत्नी को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूल्हे की गर्म लकड़ी निकाली और उससे उन्होंने उनको पीटा, और ये देख के विद्यापति जी एकदम परेशान हो गए और उन्होंने उसी समय उनको रोक दिया और ये कह दिया कि इन्हें मत मारो, ये तो स्वयं शिव जी के अवतार है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, वहां से शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, प्रकट हो गए और वहां से अंतर्धान हो गए। विद्यापति जी तो बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर शिव जी ने उन्हें बताया कि मैं आपके यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित रहूंगा, जो कि भवानीपुर में उगना महादेव के नाम से एक मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ। मेरे घर से लगभग 24 किलोमीटर दूर होगी वो मंदिर। तो इसके बाद से विद्यापति जी तो थे वो शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। कई ढेर कविताएं लिखी उन्होंने। उनकी कविताएं न केवल भक्ति पे, प्राकृतिक सौंदर्य पे भी थी। उनकी कविताओं के पंक्तियों में जो प्रकृति का सौंदर्य दिखता था वो गजब का था। जैसे कि मैं आपको 2 लाइन गुनगुना के सुनाना चाहूंगी, मैं अच्छा नहीं गाती हूँ तो थोड़ा सा विद्यापति का वाह 2 लाइन and Vidyavati again. I also understand that मिथिला रीजन मैथिली लोग स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते हैं। Before that, let me tell you why do they like Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is a great philosopher, we all know. And when I told about the Raja, Maharaja, Janak and all those things, there is a difference between the kings of Mithila and other kings. There is a big difference. Other kings were Kshatriyas, who were after war and capturing more land. But the Mithila kings were philosophers. Right? They were philosophers. Janak himself was a Bharadwaj was a philosopher. More than a king, he was a philosopher. That is how all those schools, Mimamsa and all those things developed in the Mithila region. So, Swami Vivekananda is a philosopher, and can you tell any famous quote of Swami Vivekananda in Maithili Bhasha? मैं आपको बताती हूँ, आप पहचानिएगा कि कौन सा है। मैं मैथिली में बोल रही हूँ कि आहा जना सोचबे आहा तहिना भजबे, यदि यहाँ अपना आपके कमजोर बुझबे तहाँ कमजोर भजबे, और यदि यहाँ अपना आपके शक्तिशाली बुझबे तो शक्तिशाली बन जबे। Wow. So, what I understand, I don't know Maithili, but I could make out that Swami Vivekananda said that जैसे तुम सोचते हो वैसे बनोगे। Right? तुम अपने आप को कमजोर सोचेगा, तुम कायम कमजोर निकलेगा। तुम अपने आप को शक्तिशाली मानेगा, शक्तिमान बनेगा, है ना? Very good, so interesting, and last I don't want to say, I want to conclude, but in this I want to say that, you see, we are talking about energy, sustainability and all those things. To manage energy and sustainability, what answer we have? What is the road forward? I don't know the answer, but everybody says हर doubt का answer भगवत गीता में है, right? So I am sure Bhagavad Gita has answer for this, and I think the last sloka of Bhagavad Gita was by Sanjay to Dhritarashtra, where he said, Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhritra, Tatra Tir Vidyo Bhujil Diwali Dimajurma. Can you tell this sloka in Maithili? संजय कमल की उनकर मत छलाई जे जतो योगेश्वर श्री कृष्ण रहे छथि, जतो गांडीवधारी महान धनुर्धर अर्जुन रहे छथि, ओते ओही ठाम श्री विजय और अटल नीति ओते विराजमान रहे छथि। वाह,
So, इसका what is the essence of this sloka is, जहाँ पर लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, विजय वहीं पर है। लेकिन हमें एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का क्या जोड़ है इसमें? भगवान कृष्ण रिप्रेजेंट नॉलेज, ज्ञान सागर, is hard skill, hard skills are knowledge, and Gandhidhari Ganga Arjun is potion, skill. जहाँ पर knowledge और skill मिलके है, वहीं पे विजय है। जहाँ पर hard skill और soft skill मिलके खड़े हैं, वहीं पर विजय है। और हमारा मिथिला रीजन में काफी नॉलेज भी है, काफी कौशल भी है, प्रैक्टिसेस है, right है। So they are meant to be a glorious part of Bharat Varshi, Bharat country. Okay. So, very interesting. And Adhika, I have been asking you so many things. Would you like to ask me anything? यस सर, आपकी बहुत सारी बातें हमने सुनी। आपने जिस तरीके से संस्कृत और मैथिली को कनेक्ट किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर सर, आप मूवीज वगैरह देखते होंगे? बहुत सारी, बहुत सारी। उसमें आपके फेवरेट हीरो भी होंगे? मेरा फेवरेट बहुत है, लेकिन एक जमाने में तो मैं कुत्ता बनाऊँ ना, हाँ। पहला हीरो कुत्ता को बॉलीवुड में फेमस करने वाला राजेश खन्ना। Yes. सुपरस्टार राजेश खन्ना। आप उनका एक डायलॉग सुना सकते जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है? उसका तो बहुत है, लेकिन मेरे दिल में हाथ क्या है बताना पड़ेगा। अगर यश प्रेम इच्छा यही में संपूर्ण बात यही दुनिया माने नहीं टिकट तक ये हम जाते थे कल किया और चल वो कालखान अच्छी ये कालखान वाह सर, आपने मैथिली में डायलॉग बोला। superstar. So the very famous dialogue, इतने छोटे दौड़ते ये सब दुनिया में नहीं रहता है, जो रहेगा लोगों की प्यार मोहब्बत यही रहेगा। और जहाँ पर मैं आज हूँ, कल कोई और था, कल कोई और होगा, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। Thank you आशिका, पक्का है विजय शुरू मेरा तुम्हारा फिर बने हमारा। थैंक यू। Okay, thank you all, thank you. थैंक यू। वो पेन इसके लिए था, वो पेन इसके लिए था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So, I think more than me, मैं विजय शुरू मेरा तुम्हारा आशिता को एक बिग हैंड गिव।